shadow to my light. Did you feel us? Hello students of class 5th. Welcome to your English class बच्चे. Children, today we are going to discuss the exercises of chapter number 2 of Roots and Wings, that is a letter from a father to his daughter. Okay. Children, this is the second part. ये जो वीडियो है आपका सेकंड पार्ट है, in which I will explain the exercises. I will discuss the exercises with you all. In the first part, I have explained the story. Okay. If you want to watch it, then just go on my channel. There will be the playlist, class 5 Roots and Wings. You can check it from there. Okay. You can easily get it. Otherwise, I will show you the link also in the description box. मैं description box में link भी share कर दूँगा ऐसे. आप वहाँ से भी click करके देख सकते हो. Okay. See, there is a short exercise given, that is get set. ये जो short exercise है get set, I have explained in that video in the first part. You can check it from there. Okay. Today we will discuss the exercises from the page number 26. So let's move to the page number 26 of Roots and Wings, in which questions answers are given and many more. See, read and understand. In question number A, it is telling answer the following questions orally. Children, here the questions are given and you have to answer them orally. If you want to write it on your notebook, then just pause the video and then just write it. Okay. अगर आपको लिखना है तो वीडियो पॉज कर लो आप, ताकि आपको ईजी हो लिखने में. Okay. And then just start writing. I will show you the answers in the written form. So just let me show it. So here it is. Question number 1. What did Indira mostly receive on her birthday? Then your answer will be Indira mostly received presents and gifts on her birthday. Alright. Now moving to the question number 2. Why did Jawaharlal Nehru choose to write this letter to Indira instead of sending her some gift on her 13th birthday? जो नेहरू जी थे, उन्होंने ये क्यों प्रेफर किया लेटर लिखना, जबकि वो उनको अपने बेटी के बर्थडे पर गिफ्ट भेजना चाहिए. ऐसा उन्होंने क्यों किया कि उन्होंने लेटर लिखना ही प्रेफर किया? Then your answer will be Jawaharlal Nehru chose to write to his daughter because he was unable to send her any present from the jail. Because it was impossible for him to send the present from the jail, that's why he wrote a letter. Alright? Okay. Now come to question number 3. What did Nehru dislike to do as mentioned by him? चाचा नेहरू को ऐसा क्या चीज़ थी जो पसंद नहीं थी करना, वो जो उसे डिसलाइक करते थे? Then your answer will be Nehru said he disliked sermonizing and doling out advice. Okay. Now moving to question number 4. What had fascinated Indira and what was her ambition? Then your answer will be the story of Joan of Arc had fascinated Indira and her ambition was to become like her. Indira wanted to become like Joan of Arc. Okay. Now moving to the question number 5. In which way does history according to Nehru help simple and ordinary men and women? नेहरू के अकॉर्डिंग जो हिस्ट्री है वो कैसे हेल्प करती है एक सिंपल और ऑर्डिनरी मेन एंड वेमेन के लिए? देन हियर इज योर आंसर. हिस्ट्री हेल्प्स सिंपल एंड ऑर्डिनरी मेन एंड वीमेन become interested in a great cause. Okay. Now come to the question number 6. What test does Nehru recommend to Indira to find out what is right and what is wrong in the event of any doubt? नेहरू जी ने क्या रिकमेंड किया था इंदिरा को ये पता लगाने के लिए क्या सही है क्या गलत? देन योर आंसर विल बी ही टेल्स हर टू डिसाइड व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग बाय नेवर डूइंग एनीथिंग इन सीक्रेट और एनीथिंग दैट शी मे विश टू हाइड. उन्होंने कहा था ना कि कोई भी चीज़ को सीक्रेट नहीं रखना, उसे आप हमेशा ओपन रखना. ओके. सो दिस आर द क्वेश्चन आंसर ऑफ ए. ऑलराइट. नाउ मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर बी. टिक द करेक्ट ऑप्शन. So children, here 4 options are given and you have to tick the correct one. Okay. See in the question number 1 of B. Jawaharlal Nehru wrote this letter to his daughter on her what? 10th birthday? No. Option number A, 10th birthday? No. Option number B, 13th birthday? Yes, it was 13th. It was her 13th birthday, na? So it will be ticked. C, 12th birthday? No. 11th birthday? No. So your answer will be option number B. Coming to the next one. Nehru decided to write this letter because. Why did Nehru decide to write this letter? Because option number A, he was with Bapuji. No, wrong.
Option number B, he was in the nanny prison. Yes, he wrote this letter just because he was in the nanny prison and he was unable to send the presents and gifts for Indira. That's why he decided to write this letter. Okay, so your answer will be option number B. Okay, now move to the next one, that is question number 3. अगर आपको सपोज करो आपको पीछे वाले आंसर देखना है तो आप जस्ट वीडियो को ना पीछे कर लो आप. ओके, क्वेश्चन नंबर 3. नेहरू डिड नॉट लाइक. What did Nehru do not like? That is option number A, sermonizing and giving advice to people. Yes, option number A will be your answer. Okay, so just tick it. Option number A. B, no, to do things in the darkness of night. No, it is not correct. Option number C, disobedient and indisciplined children. No. D, the poor, the starving and the oppressed. No. Your answer will be option number A. Okay, all right. Now move to the next one, that is question number C. Answer the following questions. These are the questions which you have to write in your notebook. According to my opinion, you should write all the question answer in your notebook. You should write question number A also in your notebook. It will be good, better for you. Okay. Okay. Come to the question number C. Answer the following questions. First, what is the main quality of great leaders according to Nehru? नेहरू के अकॉर्डिंग जो लीडर्स होते हैं, हमारे ग्रेट लीडर्स होते हैं, उनकी क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए? देन योर आंसर विल बी, अकॉर्डिंग टू नेहरू, ग्रेट लीडर्स मस्ट हैव लव एंड क्वालिटी ऑफ ड्राइंग आउट and inspiring a large number of people to work for a great cause. Okay, now move to the next one, question number 2. Why does Nehru recommend talking and discussing about things? Then your answer will be, Nehru recommends talking and discussing about things because through that sometimes a little bit of truth comes out. Alright, now move to the question number 3. How could the great leaders of India during its freedom movement inspire and all to come out of their shells and become India's soldiers? Then your answer will be, the leaders of the freedom movement, particularly Gandhi ji, gave love and a powerful message that inspired people to come out of their shells and become India's soldiers. Okay, now move to the next one. According to Nehru, what do we have to do to be India's soldiers? What do we have to do to be India's soldiers? It will be, I think, yeah. नेहरू के अकॉर्डिंग हमें ऐसे क्या करना चाहिए, ऐसा इंडिया के सोल्जर्स बनने के लिए ऐसा क्या करना चाहिए? Then your answer will be, to be India's soldiers, we must respect India's honor. Okay. Now come to the question number 5. What does working in secret affect the work and conduct of a person according to Nehru? अगर कोई काम हम सीक्रेट में करते हैं, उसे हाइड करते हैं, तो इससे क्या होता है, इससे क्या इफेक्ट पड़ता है हमारे काम और हम एक इंसान के कंडक्ट पर क्या इफेक्ट पड़ता है? देन योर आंसर विल बी, इफ़ यू वर्क इन सीक्रेट देन यू आर अफ्रेड एंड फियर मेक्स वन बैड एंड अनवर्दी, है ना? सो दिस वर द क्वेश्चन आंसर. नाउ अगेन इट इज गिवन थिंक एंड आंसर. दिस वन you should do it by yourself, but still I'm sharing you this answer also. In think and answer, question is asking, what kind of a person did Nehru want his daughter Indira to be and with what vision? नेहरू जी क्या चाहते थे कि उनकी जो डॉटर है इंदिरा वो कैसी बने? Then your answer will be, Nehru wanted his daughter Indira to be brave, especially in order to serve India. Therefore, he wished her to be a child of light, unafraid, serene and unruffled whatever happens. So this is the answer. Alright. Now moving to the grammar spotlight. Here it is given nouns. Okay. As you already know that what is the definition of noun? That is, noun is the name of a place, person, animal or thing. Right. Okay. And you already know that there are 5 kinds of noun. है ना? And then collective noun is one of them. So here it is given collective noun. A collective noun is a word that denotes a group of people or things. कोई भी people, person का group या किसी things का group को क्या कहते हैं हम? We call them as a collective noun. अगर उनको एक नाम दिया जाता है, फॉर एग्जाम्पल इफ़ देर आर सो मेनी प्लेयर देन दे आर कॉल्ड एज टीम. उन्हें हम क्या कहते हैं? टीम कहते हैं, है ना? अगर बहुत सारे लोग खड़े हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? भीड़. अगर लोगों की भीड़ है देन वी कॉल देम क्राउड. राइट. इन द सेम वे इफ देयर इज अ ग्रुप ऑफ सिंगर देन दे विल बी कॉल्ड एज कोयर. राइट. स्वैम ऑफ बीज, हेयर इट इज़ गिवन द एग्जाम्पल्स. अ लाइब्रेरी ऑफ बुक्स,
a team of doctors, a bouquet of flowers, a flock of birds, a litter of kittens, etc. The words which are in the red color, these are the examples of collective noun. Okay, और ये collective noun किसके हैं? Singers के का क्या collective noun, that is your choir. Bees के collective noun को कहते हैं swam. Books के collective noun को कहते हैं library. Okay, so आप इसे एक बार read कर लेना. Now come to the exercise. Question number A. Fill in the blanks with appropriate collective nouns. Here you have to fill the collective noun. Okay, see the first one. First sentence. Rohit and Ravi went to the zoo. Rohit and Ravi went to the zoo. They saw a blank of monkeys. Then collective noun of monkeys is, that is troop. So you will write here troop. TROOP. Is it clear? This is P. अगर वर्ड्स क्लियर नहीं रहेंगे तो आप मेरी वॉइस पर कंसंट्रेट करना. ठीक है, आप मेरी वॉइस को सुनने की कोशिश करना, मैं क्या बोल रही हूँ. हो सके यहाँ पर थोड़ा क्लियर ना हो लिखने में. ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट सेंटेंस. द मंकीज वर ईटिंग अ ब्लैंक ऑफ बनानाज. तो बनानाज के कलेक्टिव नाउन को क्या कहते हैं? वी कॉल देम बंच. देन हियर वी विल राइट BUNCH. अगर स्पेलिंग आपको क्लियर नहीं है ना तो मेरी आप वॉइस सुनना. ठीक है, मैं क्या बोल रही हूँ स्पेलिंग. ओके, वॉचिंग द मंकीज ईट मेड द चिल्ड्रेन फील हंग्री. दे टूक आउट अ ब्लैंक ऑफ ब्रेड. देन कलेक्टिव नाउन ऑफ ब्रेड इज loaf. Then here it will be LOAF, loaf. Of bread and some cheese from their bags. Rohit wanted to give again bread. So again here it will be loaf. Give a loaf of bread to the monkeys, but father stopped him. Rohit had a blank of chocolate. Then collective noun of chocolate is bar. So here it will be a bar of chocolate, BAR, bar. Okay, and Ravi had a blank of grapes. Then here collective noun of grapes will be your bunch. So here you will write बच्चे bunch. आप यहाँ क्या लिखोगे? BUNCH, bunch. All right, they ate them all. Done. All right, now move to the next one. Abstract nouns. अगर आपको कुछ छूट गया तो आप वीडियो को पीछे कर लो आप. ठीक है, आप देख सकते हो वहाँ. Abstract nouns and material nouns. Again, these are the kinds of noun. Okay, what is abstract noun? Abstract nouns are words that name things that are not concrete. Abstract noun हम वैसे चीज़ों को बोलते हैं जिससे हम क्या कर सकते हो? फील कर सकते हो, बट देख नहीं सकते, उसे टच नहीं कर सकते. वी कैन जस्ट फील देम. ओके, जैसे कि स्मेल हो गया, टेस्ट हो गया, सुनना. दिस आर द एग्जाम्पल्स ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स. ओके, चाइल्डहुड, क्या आप उसे देख सकते हो? आप उसे बस एक फील कर सकते हो. हाँ. ऑनेस्टी, क्या उसे आप छू सकते हो? देख सकते हो? नहीं, जस्ट यू कैन फील इट. सो दिस आर द एग्जाम्पल्स ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स. और इसका उल्टा है मटेरियल नाउन, जिससे आप क्या कर सकते हो? टच कर सकते हो, छू सकते हो. ओके, तो जैसे फॉर एग्जांपल क्या हो जाएगा मटेरियल नाउन्स में? आपके जो भी चीज़ें जैसे कि वुड हो गए, मटेरियल जिससे. हाँ, वन मोर थिंग, मटेरियल नाउन में आपका क्या होता है कि उससे आप कोई भी चीज़ को प्रिपेयर कर सकते हो, बना सकते हो. ठीक है, जैसे कि मिल्क हो गया, ये सारे क्या हो गए? कॉटन हो गए. दिस आर द एग्जाम्पल्स ऑफ मटेरियल नाउन. सीमेंट हो गए, सैंड हो गए, ऑयल हो गए. दिस आर द एग्जाम्पल्स ऑफ मटेरियल नाउन्स. All right. Now coming to the question number B. Fill in the blanks with the appropriate abstract nouns. So children, blanks are given and you have to fill the appropriate abstract noun. जो यहाँ पर suitable होगा, you have to fill it that. Okay? You have to fill that. See the first one. Ordinarily men and women are afraid of darkness. यहाँ तो आंसर दे रखा है इसने. Darkness will be your answer. Okay? तो यहाँ by mistake इसने आंसर ही लिख दिया है. So this will be your answer. ठीक है, आप इसे कट कर लो डार्कनेस को, एंड देन यहाँ आप लिख दो इसे. यहाँ कट करके आप ब्लैंक में लिख सकते हैं DARKNESS. इज इट विजिबल? सॉरी, लेट मी राइट इट अगेन. जस्ट कट इट. DARKNESS. ऑल राइट. ओके, कम टू द क्वेश्चन नंबर 2. Nobody believes a liar because he rarely speaks the truth. Here it will be truth. TRUTH, truth. This is your R, bachcha. Okay. And the third one, Sunita was conferred the award for her
performance. You can write here performance, you can write here brilliance, as your wish. मैं यहाँ परफॉर्मेंस लिख रही हूँ, PERFORMANCE. ओके, आप ब्लैंक्स के अंदर ही लिखना, मेरे जो है ना वो लेटर्स बाहर चले गए. ओके, now come to the fourth one. My English teacher has here will be completed. Okay, sorry, has complete faith in me. मुझे लगा कि यहाँ ये here it is working as a verb. Sorry, it will be my English teacher has complete faith in me. ओके, here आप यहाँ कह सकते हो faith फिल कर सकते हो, FAITH faith, या फिर ट्रस्ट भी लिख सकते हो एज योर विश. FAITH मैंने लिखा है faith. Now fifth one, we must respect India's blank and that honor is a sacred. Then here it will be we must respect India's honor. Here you can write honor. ये आपके स्टोरी में भी दे रखा था लेटर में, HONOUR. ओके, दिस इज योर N, HONOUR. and then that honor is a sacred trust. Okay, TRUST, trust. This is the T. All right, done. Now move to the next one. See, now definition of material noun is given. Nouns that refer to materials or substances from which things are made are called material nouns. As I have already told you that ऐसे nouns जो क्या हो, जो सॉलिड हो, जिसे सॉलिड नहीं मतलब जिसे आप टच कर सकते हो, ओके, देख सकते हो, और उस नाउन से आप क्या बना सकते, कुछ दूसरी चीज़ में कन्वर्ट कर सकते हो उसे, ठीक है, उससे कुछ और बन सकती हो. देन दैट विल बी कॉल्ड एज मटीरियल नाउन्स. एग्जाम्पल्स हो जाएंगे सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, ब्रॉन्ज, वुड एट्सेट्रा. और मैंने पहले भी एग्जाम्पल्स दे रखा है इससे पहले भी. ओके, देन व्हाट यू हैव टू डू हियर, यू हैव टू अंडरलाइन द मटीरियल नाउन्स इन क्वेश्चन नंबर सी. In question number C, underline the material nouns. Some sentences are given बच्चे and you have to underline the material noun. See the first one, cotton dresses are always comfortable. Then which one is the material noun? That is your cotton. So cotton को आप underline कर लो. In the 2, calcium is good for health. Then which one is the material noun? That is your calcium. So just underline it. Third one, the child drank the milk. Then milk will be your material noun. Fourth one, my mother purchased a gold ring. Then gold will be your material noun. In the fifth one, iron is a very useful metal. Then here iron will be your material noun. Done? All right. Now move to the next topic, that is countable and uncountable. Countable means which can be counted, and uncountable the nouns which can't be counted. Okay? All right. सी क्वेश्चन नंबर डी. आपको ग्रामर क्लासेस में से पढ़ाया गया है, आप वहाँ से आपको ये चीज़ पढ़ाया जाएगी ग्रामर क्लास में डिटेल में. ओके, मैं यहाँ उतना डिटेल में नहीं बता रही हूँ क्योंकि ये हमारा रीडर का बुक है, मतलब कि स्टोरी बुक है, तो मैं इसमें नहीं चाहती हूँ कि पूरा डिटेल में अगर जाऊँगी तो वीडियो लंबा हो जाएगा बच्चा. नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर डी, फिल इन द ब्लैंक्स. सी, गिव एग्जाम्पल्स ऑफ एनी 3 अनकाउंटेबल नाउन दैट यू कैन थिंक ऑफ. ऐसे 3 अनकाउंटेबल नाउन का नाम देना है, अनकाउंटेबल नाउन का, जिसके बारे में आप सोच सकते हो. देन आप लिख सकते हो शुगर, ऑयल, मिल्क, एनीथिंग विच यू वांट. ओके, वाटर. तो मैं लिख देती हूँ यहाँ पर, ये तो मेरे ऑप्शंस, आप अपना चेंज भी कर सकते हो. इट कैन वेरी ऑल्सो. SUGR sugar, OIL oil, then milk, MILK milk. In the next one, give examples of any 3 material nouns. तो आप कुछ भी लिख सकते हो, सीमेंट, वूल, गोल्ड, एनीथिंग विच यू वांट. आप इसमें अपने भी आंसर्स लिख सकते हो, ज़रूरी नहीं कि जो मैंने लिखा बस वही लिखो आप, ठीक है, ये सबके आंसर्स वेरी कर सकते हैं. इन द थर्ड वन, राइट द नेम्स ऑफ 3 थिंग्स दैट आर ऑलवेज यूज्ड इन द प्लूरल. ऐसे कौन से ये नेम्स है जो क्या होते हैं, हमेशा प्लूरल की तरह यूज़ होते हैं. जैसे सीजर्स है ना, SCISSORS, सीजर्स, ये हमेशा एज ए प्लूरल यूज़ होता है बच्चा. फिर आपका स्पेक्टेकल्स भी, SPECTACLES, स्पेक्टेकल्स. एक आप और हो सकता है आपका ट्राउज़र्स, TROUSERS, ट्राउज़र्स.
ठीक है, अगर क्लियर नहीं है तो मैं बोल देती हूँ थर्ड का। थर्ड में ए में आपको लिखोगे SCISSORS सीजर्स, बी में SPECTACLES स्पेक्टेकल्स, सी ट्राउजर्स TROUSERS trousers. All right, okay, now move to the next one. Gender. Gender means what? Gender means whether a particular noun is male or female, है ना। कोई भी अगर जो नाउन है वो क्या है, वो आपका मेल है, देन इट विल बी मैस्कुलिन जेंडर, फीमेल है तो फेमिनिन जेंडर, है ना। अगर कॉमन है जैसे स्टूडेंट जिसमें दोनों आ जाते हैं, गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों, मेल एंड फीमेल दोनों, टीचर, डॉक्टर, देन दे विल बी कॉल्ड एज कॉमन जेंडर। ऑल राइट। न्यूट्रल जेंडर हम यूज़ करते हैं किसी नॉन लिविंग थिंग के लिए और मटेरियल्स के लिए, थिंग्स के लिए, मटेरियल्स के लिए, ठीक है। न्यूट्रल जेंडर वो आपका हो जाएगा। सी क्वेश्चन इज गिवन, राइट देयर नंबर एंड जेंडर अगेंस्ट these nouns. Girl is what? Is this your masculine gender or feminine gender? This is your what? This is your feminine gender. Okay. पहले आपको नंबर लिखना है कि सिंगुलर या प्लूरल है, उसके बाद आपको बताना है ये कौन सा है, कौन सा जेंडर है। ओके, तो फर्स्ट आप में ब्लैंक वाले में क्या लिखोगे आप, दिस इज योर सिंगुलर, तो आप यहाँ लिखोगे सिंगुलर SINGULAR सिंगुलर, एंड देन ये क्या है, फेमिनिन जेंडर है, तो FEMININE फेमिनिन जेंडर। ओके, टू देखो आप मेन इज व्हाट, दिस इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ मैन, तो मेन आपका ये प्लूरल हो जाएगा। यहाँ आप लिखोगे फर्स्ट वाले ब्लैंक में PLURAL प्लूरल। नेक्स्ट ब्लैंक में क्या लिखोगे, दिस इज योर मैस्कुलिन जेंडर, तो MASCU, तेरी अब तो दिख नहीं रहा है ना, CULINE मैस्कुलिन। ओके, वेट लेट मी राइट इट अगेन, मैं फिर से लिख देती हूँ। यहाँ आप लिखोगे SINGULAR सिंगुलर, एंड देन फेमिनिन। सेकेंड ब्लैंक में FEMININE। वर्ड्स क्लियर नहीं है ना तो मेरा वॉइस सुनना, मैं क्या बोल रही हूँ, क्या क्या मैं रीड कर रही हूँ, ठीक है, उससे पकड़ लोगे आप। मेन क्या है, दिस इज योर प्लूरल ऑफ मैन, तो ये हो जाएगा प्लूरल नंबर में PLURAL प्लूरल, और ये आपका मेन क्या है, दैट इज योर मैस्कुलिन जेंडर ना, देन हियर यू विल राइट MASCULINE मैस्कुलिन। ऑल राइट। थर्ड स्टूडेंट्स, यहाँ एस लगा, देन दैट इज इट इज योर प्लूरल फॉर्म, सो इट विल बी PLURAL प्लूरल, एंड मैंने आपको बता रखा था स्टूडेंट्स में मेल फीमेल दोनों आते, सो इट विल बी योर कॉमन जेंडर। विच जेंडर, इट विल बी योर कॉमन जेंडर, तो आप नेक्स्ट ब्लैंक में लिख लो COMMON कॉमन। ओके, पेन, अ पेन मीन्स व्हाट, दिस ओनली वन पेन, सो इट विल बी योर सिंगुलर इन नंबर, तो आप यहाँ लिखोगे SINGULAR सिंगुलर। पेन इज व्हाट, दैट इज योर थिंग, सो इट विल बी योर न्यूट्रल जेंडर, तो यहाँ आप लिख दो सेकेंड वाले ब्लैंक में NEUTER। न्यूट्रल जेंडर का स्पेलिंग क्या हो जाएगा, न्यूट्रल का NEUTER। ऑल राइट, अब आ जाओ आप लास्ट, नॉट द लास्ट, इट इज द फिफ्थ वन, अ चेयर मीन्स देयर इज ओनली वन चेयर, सो इट विल बी योर सिंगुलर नाउन, तो फर्स्ट वाले ब्लैंक में हो जाएगा SINGULAR सिंगुलर, एंड चेयर इज व्हाट, दिस इज अ थिंग, मटेरियल, मेड ऑफ मटेरियल, सो इट विल बी योर व्हाट, न्यूटर जेंडर, NEUTER न्यूटर। टीचर, here is teacher not teachers, then it will be your singular in number SINGULAR, and teacher is what, that is your common gender, क्योंकि इसमें दोनों आते हैं मेल एंड फीमेल, सो COMMON कॉमन। ओके, डन। अगर वर्ड्स क्लियर नहीं है तो आप वीडियो को पॉज करके लिखो, और फिर भी आपको समझ नहीं आ रहा है तो मेरी वॉइस सुनो, मैंने क्या क्या बोला है वहाँ पर, मैंने क्या क्या स्पेलिंग को प्रोनाउंसिएट किया है। ऑल राइट, ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन, spell well. Come to the spell well. Question number A, fill in the missing letters to spell the words correctly with the help of the words given in the help box. See, some letters are missing and you have to just fill it there to make a meaningful word. Then in the first one what you will write, it will be sermonize, तो आप यहाँ लिख सकते हो SERMO हो जाएगा यहाँ NISE,
Here it will be advice. AD will be here, VICE. Okay, that is your I. Wait, SEMONI. Here you will write D, and then here you will write I. It will be advice. In the third one it will be mystery, MYSTERY. In the fourth one it will be oppressed, so here it will be OPPRESSED. In the fifth one it will be sacred, SACRED, sacred. In the sixth one it will be serene, SERENE, serene. Done? Okay. So now move to the next one. Come to the word power. See, match the words under column A with the words under column B having meanings. Also use the words under column A in the sentences of your own. See, you have to match them. Okay, there are two columns given, column A and column B. Just you have to match these words with their meanings. In column A words are given, and in the column B their meanings are given. All right. See, then in the first one, what is the meaning of transparent? It will be see through. So first will be matched with the match it. Just match it here. It will be see through. Trust. Trust means faith. Then 2 will be matched here. The third one, eager. Eager means keen. So just match it here. Now in the fourth one it is etiquette. Then it will be accepted manners. So it will be matched here. Doubt. Doubt means confusion. So just match it here. Done? Alright. Now just pause the video and then just do it. Okay. Now see, activities are given which you have to do in your classroom. ये आपके क्लासरूम की एक्टिविटी है जो आपके टीचर करवाएंगे आपके क्लासरूम में. मैं आपको आगे हेल्प कर सकती हूँ तो आपको मैं ये करवा देती हूँ. आगे आ जाओ आप. पंक्चुएशन वाले. पंक्चुएशन मीन्स व्हाट? देयर आर सो मेनी पंक्चुएशन मार्क्स, कॉमा, फुल स्टॉप, ये सारे जो क्या हैं क्वेश्चन मार्क्स, ज़्यादा पंक्चुएशन मार्क्स हैं. पंक्चुएशन अगर बोला जाए तो आपको कैपिटल लेटर कहाँ लिखना है आपको ये ध्यान रखनी है. अगर प्रॉपर नाउन है तो कैपिटल लेटर यूज़ करनी है आपको. ठीक है. अगर कोई सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है तो आपको वहाँ कैपिटल लेटर यूज़ करना है. तो ये सारे क्या है पंक्चुएशन कहलाएंगे. कहाँ पर फुल स्टॉप डालना है, कहाँ कॉमा आपको यूज़ करना है, व्हाटएवर यू हैव टू यूज, जस्ट दिस आर विल बी कॉल्ड एज पंक्चुएशन. ओके. सो देयर आर सो मेनी एरर्स इन दिस पैराग्राफ. ओके. तो देन लेट मी शो यू द आंसर्स. मैं इसके आंसर्स आपको शो करती हूँ. ऊपर में क्वेश्चंस रहेंगे, नीचे में आपके आंसर्स रहेंगे. ऑलराइट. मैं थोड़ा देर तक उसे शो करूँगी. आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो. आप वीडियो को पॉज करके आप उसे कर सकते हो. सो हियर इज द आंसर. सी, ऊपर वाले में लिखा है क्वेश्चन. ये दिस इज योर क्वेश्चन. ओके. एंड दिस इज योर आंसर. ठीक है. आप इसे पॉज कर लो वीडियो को एंड देन जस्ट डू इट. ऑलराइट. आप वीडियो को पॉज कर लीजिए एंड देन डू इट इन योर बुक एंड यू कैन डू इट इन योर नोटबुक ऑल्सो. Okay, now move to the next one, that is right whale. In the right whale, first one is given composition. You have to write the composition. In the composition you have to write a letter. आपको लेटर लिखना है. मैंने लेटर लिखना सिखाया है. मेरे आप चैनल पर जाना, वहाँ वीडियोस मैंने बना रखा है फॉर्मल लेटर एंड इनफॉर्मल लेटर. ठीक है. आप वहाँ से हेल्प लेकर आप सीख सकते हो हाउ टू राइट अ लेटर. ओके. इट विल बी इजी फॉर यू एंड देन जस्ट राइट इट हियर. ओके. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन, बी. Imagine you met Jawaharlal Nehru using the format given below. Interview with the details of all the questions you asked Nehru and the answers that he gave. See, here you have to just imagine that you have met with Jawaharlal Nehru. आप जवाहरलाल नेहरू से मिले और आपने उनका इंटरव्यू लिया है. आपने कुछ क्वेश्चंस प्रिपेयर किया था और यहाँ कुछ क्वेश्चंस है और आंसर्स जो उन्होंने दिया है वो है. मतलब कि यहाँ कन्वर्सेशन दे रखी है. ठीक है. इंटरव्यू में आपके बीच और आप और नेहरू के बीच में क्या क्या कन्वर्सेशन हुई है उसे आपको यहाँ फिल करनी है. यू हैव टू जस्ट इमेजिन. आपको इमेजिन करना है. ऑलराइट. ओके. सी, मैं कोई भी यहाँ पर नाम ले लूँगी. कोई बच्चा समझो आप, कोई भी इसमें से. सपोज़ करो मैं ले लेती हूँ राहुल. ओके. तो मैं यहाँ आपको राहुल यूज़ करूँगी. जो बच्चा यहाँ इमेजिन कर रहा है कि मैंने जवाहरलाल नेहरू से मिला, आप अपना नाम लिख सकते हो. अपना नाम और यहाँ आपको अपना एज भी मेंशन करना है. ऑलराइट. आप अपने नेम लिखोगे.
डोंट ट्राई टू कॉपी एवरीथिंग, बस नेम अपना चेंज कर सकते हो, बाकी चीज़ आप कॉपी कर सकते हो। ओके, हेलो सर, हाउ आर यू। आप यहाँ क्या लिखोगे फर्स्ट वाले ब्लैंक में, हाउ आर यू। वेट, तो यहाँ आप लिख सकते हो हाउ आर यू, हेयर यू विल राइट HOR, हाउ आर यू। ओके, क्वेश्चन मार्क इज ऑलरेडी गिवन। आप ब्लैंक के अंदर ट्राई करना लिखने का, मेरे जो वर्ड्स जो सारे बाहर आ रहे हैं। ओके, देन माई नेम इज़, जो भी नाम है आप लिख लो। मैंने आपको कहा है कि मैं एक सपोज करो मैं एक नाम ले लिया राहुल, तो मैंने यहाँ लिख दिया RAHUL राहुल। आप अपना यहाँ नाम लिख सकते हो राहुल की जगह पर। एंड आई एम, आप अपना एज यहाँ मेंशन कर देना, आई एम 9 years old। ठीक है, सपोज करो मैंने 9 years बताया है राहुल के बारे में। नेहरू, हेलो, हाउ, हेलो राहुल, आई एम गुड। यहाँ नेहरू क्या बोलेंगे, हेलो राहुल, आई एम गुड एंड हाउ आर यू। फिर यहाँ गांधी जो सॉरी नेहरू जी हैं वो राहुल से बैक क्वेश्चन कर रहे हैं कि हाउ आर यू, तुम कैसे हो। तो आप यहाँ लिख दोगे हाउ आर यू, और क्वेश्चन मार्क इज ऑलरेडी गिवन। ओके ओके, क्वेश्चन मार्क मैं भी दे देती हूँ ऐसे। देन फिर आप क्या बोलते हैं, यू मीन्स व्हाट, इट मीन्स ये आप बोल रहे हो यहाँ पर, थैंक्स फॉर गिविंग मी सम टाइम एंड टॉकिंग टू मी। और यहाँ थैंक्स आपको कहना है, ठीक है, आप लिख सकते हो। आप यहाँ चेंज भी कर सकते हो, अपने वर्ड्स भी लिख सकते हो, ज़रूरी नहीं कि मैं जो लिख रही हूँ आप वही लिखो। एंड टॉकिंग टू मी, ठीक है। नेहरू, नेहरू ने क्या बोला, आई लव चिल्ड्रेन। सपोज करो नेहरू ने यहाँ क्या बोला है, आई लव चिल्ड्रेन, CHILDREN चिल्ड्रेन, एंड आई एम प्लीज्ड टू बी विथ देम, WITH विथ THEM देम। बच्चे अगर क्लियर नहीं है ना वर्ड्स, तो आप मेरी वॉइस सुनो, मेरी आवाज़ सुनो मैं क्या बोल रही हूँ। ओके, WITH विथ लिखा है मैंने, THEM देम लिखा है। आई नो कि ये क्लियर नहीं होगा आपके लिए। वीडियो को पॉज करके फर्स्ट सेंटेंस में मैंने लिखा, वहाँ पे वीडियो पॉज करके आप लिखना शुरू कर दो। सेकंड सेंटेंस में मैं गई, आप वहाँ पर फिर लिखो, फिर पॉज करो वीडियो को, इस तरह से आप कर सकते हो। ठीक है, यू, नाउ यू आर आस्किंग द क्वेश्चन, वेयर डू यू लिव नेहरू जी, टेल मी समथिंग अबाउट द प्लेस। यहाँ आप जो राहुल है वो पूछता है नेहरू से कि आप कहाँ रहते हैं नेहरू जी, और अपने जो जहाँ भी रहते हैं आप उस प्लेस के बारे में कुछ बताएं। ओके, तो अब देखो मैं बाकी के रेस कर रही हूँ। ठीक है, आपको अगर लिखना है तो आप बैक कर सकते हो वीडियो को 10 सेकंड के लिए जो भी हो, एंड देन या फिर पॉज करके लिख सकते हो, वो आपको दोबारा दिख जाएगा। ऐसा नहीं कि हट गया तो फिर आपको मिलेगा नहीं। ओके, हाँ, देन यहाँ आप क्या लिखोगे, तो यहाँ नेहरू जी क्या आंसर कर रहे हैं, जो यहाँ राहुल ने क्वेश्चन पूछा है तो वो आंसर कर रहे हैं, आई लिव, सॉरी वेट, आई लिव, LIV है, लिव इन 3 मूर्ति भवन, 3 MURTI मूर्ति भवन। बेटा मैं बड़ा बड़ा लिख रही हूँ, ठीक है, न्यू दिल्ली, सो दैट इट विल बी क्लियर टू यू। एक आंसर लिखूंगी मैं, इरेज करूँगी, न्यू दिल्ली, तो आप लिखते जाओ वीडियो पॉज करके, न्यू दिल्ली। ओके, नाउ नेहरू अगेन, हाँ यू, सॉरी अब यहाँ राहुल पूछता है, दैट साउंड एक्साइटिंग, हाउ डू यू विजिट ऑल द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द country in such a short period? Then what Nehru replied, I travel by air to reach as many places. Then आप इसमें लिखोगे I travel by air, okay, to reach, REACH, reach many PLACES places. This is your A बच्चा, ठीक है, places. डन। नाउ अगेन राहुल इज आस्किंग, मीन्स यू, जो भी आप अपना नाम लिखोगे, राहुल मैंने तो यहाँ राहुल ले रखा है, आप अपना नाम लिखोगे। व्हाट ब्लैंक फूड डू यू लव टू ईट, यहाँ राहुल ने फिर से क्वेश्चन पूछा, व्हाट काइंड ऑफ फूड डू यू लव टू ईट। ठीक है, तो मैं इसे डिलीट करती हूँ पहले। वेट, व्हाट काइंड है, यहाँ आप लिख सकते हो काइंड, AOF ऑफ, काइंड ऑफ फूड डू यू लव टू ईट। ओके, फिर नेहरू ने क्या रिप्लाई किया, आई लव इंडियन एंड कंटिनेंटल फूड। ठीक है, जो भी आप लिख सकते हो,
मैं यहाँ लिख देती हूँ आई लव, या फिर इंडियन ही लिख सकते हो आप, इंडियन फूड, आई लव इंडियन फूड, दैट्स एनफ. फिर अगेन यू आर आस्किंग what टाइप ऑफ चिल्ड्रन डू यू लव द मोस्ट. यहाँ क्या कर सकते हो आप, टाइप लिख सकते हो. मैं इसे इरेज कर रही हूँ. हियर यू आर आस्किंग व्हाट टाइप ऑफ चिल्ड्रन डू यू लव द मोस्ट. यहाँ आप लिखोगे व्हाट टाइप, सॉरी ऑफ ऑलरेडी लिखा है, तो यहाँ आप सिर्फ लिखोगे व्हाट टाइप ऑफ चिल्ड्रन डू यू लव द मोस्ट. आप यहाँ पूछ रहे हो नेहरू जी से आप किस तरह के बच्चे को पसंद करते हो, तो नेहरू जी ने आंसर किया आई लव, LOV. बेटा ये टी नहीं L है, ठीक है. मैं अच्छे से लिख देती हूँ. यहाँ नेहरू जी ने कहा आई लव ऑल चिल्ड्रेन, ओके, स्पेशली दोज हु आर ब्रेव. इसी लाइन में जाएंगे, ठीक है. मैं नीचे लिख दे रही हूँ ये मत समझना कि नेक्स्ट वाले में नहीं, इसी के साथ एक चिल्ड्रन के बाद ही लिखना है आपको. ESPECIALLY, स्पेशली दोज हु आर ब्रेव. नेहरू जी ने कहा मैं तो वैसे सारे बच्चों को प्यार करता हूँ, लेकिन खासकर जो बच्चे ब्रेव होते हैं ना उन्हें ज़्यादा, मुझे थोड़ा उनसे ज़्यादा लगाव होता है. स्पेशली उन बच्चों को करता हूँ जो ज़्यादा ब्रेव होते हैं, ठीक है. ओके, ये आप लिखो. नेक्स्ट में आप आ जाओ. यू आम आई वॉट. फिर यहाँ आप क्वेश्चन कर रहे हो आम आई ब्रेव. बेटा वो सारे आंसर्स इसके थे, ऊपर वाले सेंटेंस में थे, ऊपर वाले ब्लैंक के लिए थे. यहाँ आप क्या लिखोगे आम आई ब्रेव. तो नेहरू जी ने क्या कहा श्योर यू आर, या हाँ तुम हो, नेहरू जी ने रिप्लाई किया. ओके, सो दिस वन वी हैव डन. थोड़ा मुश्किल से हमने किया ये वाले क्योंकि हमारे पास स्पेस नहीं थे और ये जो वर्ड्स ना काफ़ी लंबे लंबे जा रहे थे, तो मैंने ट्राई किया है कि आपकी हेल्प कर सकूँ. बेटा मैंने तो इतना आपके बारे में सोचा. अब आप भी इस वीडियो को थोड़ा लाइक करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स से. आपके जो भी फ्रेंड्स कलीग्स हैं ना, आपके क्लासमेट हैं, आप उनको शेयर करो ताकि उनको भी हेल्प हो जाए और मुझे भी इंकरेजमेंट मिल सके. आप लोग इंकरेज करोगे तभी तो मैं सारे वीडियोज़ बनाऊँगी और ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा एग्ज़ाम के टाइम स्पेशली. फिर वीडियोज़ बच्चे खोजते हैं, है ना. तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप सारे वीडियोस को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को, सो दैट यू कैन गेट ऑल द वीडियोस इजली. आपको सारे वीडियोस इजली मिल जाए, आपके स्टडीज़ वीडियो जो भी हैं. ओके, सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल. सो थैंक यू एंड हैव अ गुड डे. बाय बाय.